Hello everyone, welcome to online classes, Science class 8th, chapter 14, Chemical Effects of Electric Current. Your elders might have you against touching an electrical appliance with hands, but do you know why it is dangerous to touch an electrical appliances with wet hands? Wet hands मीन्स अगर हम अपने गीले हाथों से अगर हम टच करते हैं किसको, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, तो डेंजरस है क्योंकि इससे क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक। तो नेक्स्ट देखिए, वी हैव लर्नड अर्लियर दैट द मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी। आप लिखेंगे व्हाट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या व्हाट इज कंडक्टर, तो आपका आंसर ये हो जाएगा विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। For example, human body, electric wire. On the other hand, material which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductor, means insulator. For example, rubber, plastic, wood, etc. In class 6th, we made a tester. यहाँ पे देखिए फिगर आपको गिवन है 14.1 to test whether a particular material allows to electric current to pass through it or not. Do you recall how the tester help us in deciding that? कैसे डिसाइड करेगा? We found that metal such as copper and aluminum conduct electricity, whereas metal such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity, as you know very well. However, so far we have used our tester to test. टेस्टर का होता है टेस्ट करने के लिए कि करंट है या नहीं है, टू टेस्ट मेटल विच वर इन सॉलिड टेस्ट। बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स? डू लिक्विड आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? लेट अस फाइंड आउट। तो आप इस फिगर को आप ऑब्जर्व कीजिए 14.1 गुड कंडक्टर और ये क्या यहाँ पे पुअर कंडक्टर। तो यहाँ पे देखिए जो वायर है किसके साथ कनेक्ट है, ये देखिए किसके साथ कनेक्ट है, मेटल के साथ। और यहाँ पे वायर किसके साथ कनेक्ट है, प्लास्टिक के साथ। तो प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर है। इस केस में बल्ब ग्लो नहीं होगा और यहाँ पे देखिए बल्ब क्या है, ग्लो है। नेक्स्ट देखिए 14.1 डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? To test whether a liquid allows electric current to pass through it or not, we can use the same tester which we made in class 6th, जो आपने स्टडी किया था क्लास 6th में। However, replace the cell by a battery. Also, before using the tester, we should check whether it is working or not. यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 14.2, ये देखिए आपने ये ऑब्जर्व किया था फिगर 14.1 टेस्टर। अगर ये मेटल के साथ कनेक्ट है तो बल्ब ग्लो है और ये प्लास्टिक के साथ है तो बल्ब नॉट ग्लो, यानी कि पुअर कंडक्टर। अब एक्टिविटी देखिए 14.2, collect a few small plastic or rubber caps of discarded bottles and clean them. Pour some 1 teaspoon of lemon juice or vinegar in 1 cup. Bring your tester over this cap and let the ends of the tester dip into lemon juice or vinegar as shown in the figure 14.2. Take care that the ends are not more than 1 centimeter apart, but at the same time do not touch each other. आपने एक दूसरे को टच नहीं करना है। Does the bulb of the tester glow? Does lemon juice or vinegar conduct electricity? How would you classify lemon juice or vinegar a good conductor or a poor conductor? ये देखिए आपके पास ये सर्किट है और ये आपके यहाँ पे कनेक्ट है बैटरी। बड़े टर्मिनल को बोलेंगे आप पॉजिटिव और छोटे टर्मिनल को आप क्या बोलेंगे, नेगेटिव। और क्या कनेक्ट है इसके साथ, बल्ब। और इसमें देखिए क्या है यहाँ पे, लेमन जूस। टेस्टिंग कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लेमन जूस और विनेगर। देखिए व्हेन द
liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass. The circuit of the tester become complete. Complete means उस circuit में से क्या pass हो रहा है आपका current. The current flows in the circuit and the bulb glows. When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete. Not complete means आपका ओपन सर्किट. ओपन सर्किट में कभी करंट पास नहीं होगा. एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो. इन सम सिचुएशंस इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग. कंडक्टिंग मीन्स उसमें से करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है. द बल्ब मे नॉट ग्लो. इन सम सिचुएशन इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो. It may have happened in the activity 14.2. What can be the reason? Do you remember why the bulb glows when the electric current passes through it? Due to the heating effect of current. Due to the heating effect of a current, the filament of the bulb के अंदर क्या होता है, filament gets heated to a high temperature and it starts glowing. However, if the current through the circuit is too weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow. And why is the current in the circuit weak? Well, though a material may conduct electricity, it may not conduct it is easily to as a metal. As a result, the circuit of the tester may be complete or yet the current through it may be too weak to make the bulb glow. Can we make another tester which can detect means पता लगाना a current, weak current. ये देखिए एक्टिविटी 14.3. यदि सर्किट में से करंट अगर पास हो रहा है, सपोज मान लो, तो इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है, जो नीडल है, ये क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी. इट मीन्स इसमें सर्किट में से क्या पास हो रहा है, करंट. अगर ये नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होगी, इट मीन्स इस सर्किट में से करंट पास नहीं हो रहा है. तो जब आपकी क्लास ओपन होगी रेगुलर, तब आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि कैसे ये ओपन क्लोज्ड कैसे होता है. आगे देखिए नेक्स्ट. वी कैन यूज another effect of an electric current to make another kind of tester. Do you recall that electric current produce an magnetic effect? ये देखिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्यों है यहाँ पे नीडल का, ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट. नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपन टू अ कंपास नीडल कैप्ट नियर बाई. देखिए उसी की फिगर की बात है. नियर बाई व्हेन करंट फ्लो इन अ वायर. जब करंट में से वायर क्या होगा, व्हेन करंट फ्लोज इन अ वायर. जब वायर में से करंट फ्लो होगा तो वो जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट. क्यों, ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट. इवन इफ द करंट इज स्मॉल. यदि करंट स्मॉल है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कैन बी सीन. कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? लेट अस फाइंड आउट. नेक्स्ट देखिए, एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल दैट can conduct. That is why it is a preferable to classify material as good conductor and poor conductor. Good conductor means in which current pass. Poor conductor means insulator. It means not current flow. Instead of classifying as conductor and insulator, when salt is dissolved in distillated water. Distillated means जो प्योर वाटर है उसके अंदर क्या ऐड कर दें, when salt dissolve in distillated water we obtain salt solution. तो वो क्या बन जाएगा, salt solution. दिस इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो उसमें से क्या फ्लो हो जाएगा, करंट. द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप्स, हैंड पंप, वेल्स एंड पॉन्ड्स इज नॉट प्योर. ये बिल्कुल साफ नहीं होता. इट में कंटेन सेवरल. उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर साल्ट डिजोल्व होते हैं. स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स साल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट. उसके अंदर छोटे छोटे अमाउंट में मिनरल्स जो हैं नेचुरली प्रेजेंट होते हैं. किसके अंदर, पॉन्ड्स वाटर के अंदर और हैंड पंप, टैप्स. दिस वाटर इज दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
ऑन द अदर हैंड डिस्टिलेटेड वाटर मीन्स प्योर वाटर, जिसके अंदर क्या है, फ्री ऑफ साल्ट, कोई किसी प्रकार का साल्ट नहीं है, वो क्या हो जाएगा, पुअर कंडक्टर, क्या हो जाएगा वो, पुअर कंडक्टर। नेक्स्ट देखिए, वी हैव फाइंड दैट कॉमन साल्ट व्हेन डिजोल्व इन डिस्टिलेटेड वाटर मेक इट इज अ गुड कंडक्टर। यदि डिस्टिलेटेड वाटर में सम साल्ट ऐड कर दें तो वो जो सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन, उसमें से क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर, यानी कि करंट पास हो जाएगा। व्हाट आर द अदर सब्सटेंसेस विच when dissolved in distilled water make it conducting, let us find out। तो नेक्स्ट देखिए, मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेसिस एंड साल्ट। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन, ये एसिड बेस साल्ट ऐड कर दें तो सॉल्यूशन में क्या पास हो जाएगा, करंट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट flows through a conducting solution does it produce an effect of the solution। तो नेक्स्ट देखिए 14.2 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। इन क्लास 7th वी हैव लर्नड सम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कैन यू लिस्ट दिस इफेक्ट्स, what effect does the current produce when it flows through a conducting solution, let us find out। एक्टिविटी 14.6, टेक आउट कार्बन रोड्स, आपने क्या लेने, कार्बन रोड्स केयरफुली फ्रॉम टू डिस्कार्डेड सेल्स, क्लीन देयर मेटल कैप्स विद सैंड पेपर। ये देखिए आपके पास एक कार्बन रोड है, इनकी जो मेटल कैप है इनको आपने किसके साथ साफ करना है, विद द सैंड पेपर। सैंड पेपर क्या करता है कि इनके ऊपर जो भी इम्प्योरिटीज हैं उसको क्लीन कर देता है। क्लीन देयर मेटल कैप्स विद द सैंड पेपर, रैप कॉपर वायर अराउंड द मेटल, आपने क्या करना है कि कॉपर की वायर को रैप करना है, यानी कि लपेटना है, जैसे कि आपको फिगर में गिवन है, ऑफ द कार्बन रोड्स एंड ज्वाइन देम टू अ बैटरी, और उसको किसके साथ ज्वाइन कराना, अपने बैटरी के साथ। ये फिगर में देखिए आप, ये किसके साथ ज्वाइन है, बैटरी के साथ। नेक्स्ट देखिए, वी कॉल दीज टू रोड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। इंस्टेड ऑफ कार्बन रोड्स यू मे टेक टू आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, यदि कार्बन रोड नहीं है तो आप क्या ले सकते हैं, टू आयरन नेल्स। नेक्स्ट देखिए, pour a कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास ऑफ प्लास्टिक बाउल, और इसके अंदर आपने क्या डालना है, वाटर। इस नेक्स्ट देखिए, ऐड अ टी स्पून ऑफ टी स्पून फुल ऑफ साल्ट एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस ऑफ टू वाटर टू मेक इट मोर कंडक्टिंग, ताकि इसके अंदर और भी करंट प्रोड्यूस हो। नाउ इमर्स द electrodes in this solution, make sure that metal cap of the carbon rod आउटसाइड ऑफ द वाटर, ये जो है पानी से बाहर रहे। देखिए फिगर में मेटल जो है ये बिल्कुल ऊपर रहनी चाहिए, इसके अंदर पानी जो है नीचे तक रखना है आपने। नेक्स्ट देखिए, मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रोड्स आर आउटसाइड द वाटर, पानी से बाहर रहनी चाहिए जो मेटल कैप्स है। वेट फॉर 3 to 4 minutes, ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली, डू यू नोटिस दैट एनी गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड्स, आप देखेंगे कि गैस के जो बबल्स हैं वो किसके नज़दीक हैं, इलेक्ट्रोड्स के। कैन वी कॉल द चेंजेस ऑफ टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन, यस कलर जो है चेंज हो जाएगा। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ ए केमिकल चेंज दैट यू लर्न इन द क्लास 7th। नेक्स्ट देखिए, द पैसेज ऑफ an electric current through a conducting solution cause chemical reaction, as a result bubbles of a gas may be formed on the electrodes, electrodes के पास क्या हो जाएंगे, gas bubbles। deposit of the metal may seen on the electrodes, changes of the color of solution may occur, ठीक है, कलर जो है सॉल्यूशन का में चेंज हो सकता है। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन दैट वट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज, ये डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन कैसा है और इलेक्ट्रोड्स कैसे हैं। The reaction would depend on what solution and electrodes are used. These are some of the chemical effects of the electric current। Next देखिए 14.3 electroplating। Recall that a brand new bicycle has shiny
hand handle beer handlebar, and wheel rims. Recall that a brand new bicycle that has shiny handlebar. जब भी नया साइकिल कोई पर्सन खरीदता है तो उसका जो हैंडल बार होता है वो कैसे होता है, शाइनी, चमकदार। एंड व्हील रिम, और उसके जो व्हील रिम होते हैं वो भी क्या करते हैं, शाइनी यानी कि चमक करते हैं, यानी उनके अंदर क्या होते हैं, शाइनी, चमक होती है। किसके अंदर, न्यू बाइसिकल। However, if these are accidentally scratch, यदि उसके पास क्या पड़ जाए, scratches, the shiny coating come off revealing are not so shiny surface beneath. You might have also seen women using ornaments, औरतें जो क्या पहनती है, गहने, which appear to be made of gold, जो किसके बनते हैं, गोल्ड। However, with repeated use द गोल्ड कोटिंग वियर ऑफ, उसकी जो चमक है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम। रिवीलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल बीनीथ, आपने देखा कि जो सिल्वर है आफ्टर सम टाइम वो कौन से कलर की हो जाती है, ब्लैक कलर की। इन बोथ दीज केसेज अ मेटल हैज ए कोटिंग ऑफ अनदर मेटल, तो उनके ऊपर क्या एक क्या हो गया, डिपॉजिट, एक कोटिंग। डू यू वंडर हाउ द ए लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपॉजिट ऑन द top of the another? Well, let us try doing it ourselves. Activity 14.7, we will need copper sulfate, means CuSO4, copper sulfate, and two copper plates of size around 10 centimeter into 4 centimeter. Take 250 ml of diluted water, means pure water, in a clean and dry beaker. Dissolve 2 teaspoonful of copper sulfate in it. Add a few drops of dilute यानी कि थोड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्टिंग, ताकि इसमें क्या हो, ज़्यादा करंट पास हो। क्लीन कॉपर प्लेट्स विद सैंड पेपर, कॉपर की जो प्लेट है उसको आपने किसके साथ साफ करना है, सैंड पेपर के साथ। नेक्स्ट देखिए, नाउ रिंज दैम विद वाटर एंड ड्राई दैम। कनेक्ट द कॉपर प्लेट टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, किसके साथ कनेक्ट करना है, बैटरी के साथ। एंड इमर्स द मैंने डालना दैम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये देखिए जैसे फिगर में गिवन है, आपको ये कॉपर की प्लेट है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, और इसको किसके साथ ज्वाइन किया गया है, बैटरी के साथ। A simple circuit showing electroplating. नेक्स्ट देखिए, allows the current to pass for about 15 मिनट, इसके अंदर कितनी देर आपने करंट पास करना है, 15 मिनट। Now remove the electrodes from the solution and look at them carefully. Do you find any difference in their one of them? Do you find an coating over it? तो उसके ऊपर क्या हो जाए, coating over it. What color is the coating? Note down the terminal of the battery which दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब करंट पास था किसके अंदर, कॉपर, देखिए व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट डिसोसिएटेड इनटू कॉपर एंड सल्फेट, वो ब्रेक डाउन हो जाए कॉपर एंड सल्फेट। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। देखिए जो कॉपर है वो कहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, टू द नेगेटिव टर्मिनल पे ऑफ द बैटरी एंड गेट्स डिपॉजिट ऑन इट। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, from the other electrodes a copper plate of equal amount of copper gets dissolved in the solution. Thus the loss of copper from the solution is restored and processing keeps going. This means the copper gets transferred from the electrodes to the other, वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया किसके अंदर, फ्रॉम द इलेक्ट्रोड टू द अदर। तो नेक्स्ट देखिए, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? The process of depositing a layer of any desired metal to another. The process of depositing means जमा हो जाना लेयर का, any desired metal to another, दूसरे मेटेरियल के ऊपर, मीन्स ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि लेयर का डिपॉजिट हो जाना वन टू अनोदर, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लायंसेस ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस, इट इज वाइडली यूज इंडस्ट्री, कहाँ पर यूज होता है इसका, इंडस्ट्री में, फॉर कोटिंग मेटल, मेटल की कोटिंग करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ different metal. The layer of metal deposit has some desirable property which the metal of the object lacks. For example, chromium, that is the metal chromium. Plating is done on many objects such as car plates, bath taps, kitchen gases, burners, bicycle handlebars, wheel rims and many other. तो क्रोमियम का यूज कहाँ पर होता है, बहुत मैनी सब ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोटिंग करने के लिए, ताकि उसकी जो शाइनिंग है वो अच्छी रहे। क्रोमियम हैज अ शाइनिंग अपीयरेंस, क्रोमियम के अंदर, मेटल के अंदर क्या होता है, शाइनिंग, चमक होती है। इट इज नॉट कोरोड, इस पर आसानी से जंग नहीं लगता। इट रेजिस्टेंस स्क्रैचेज, और स्क्रैच को ये क्या करता है, उसका रिसेंट यानी कि विरोध करता है, यानी कि स्क्रैच कम से कम पड़ते हैं इनके ऊपर। हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव, लेकिन ये महंगा भी है। एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम, लेकिन हम पूरा पूरा ऑब्जेक्ट जो है क्रोमियम का नहीं बना सकते, बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम द cheaper metal and only a coating of chromium over it is deposited. ज्वेलरी मेकर्स, इलेक्ट्रोप्लेट्स, जो भी ज्वेलरी होती है क्या होते हैं सारा सारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल, वो कम मिल जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर क्या होते हैं, कोटिंग। दीज ऑर्नामेंट्स, जो एक गहने होते हैं, हैव ए अपीयरेंस ऑफ सिल्वर, लेकिन वो किसकी तरह दिखाई देते हैं, अपीयरेंस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, बट आर मच लेस एक्सपेंसिव, लेकिन वो कम महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू ओरिजिनल। टीन कैंस यूज फॉर स्टोरिंग फूड, टीन का यूज कहाँ पर करते हैं, स्टोरिंग फूड। द मेड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इनटू टीन ऑनटू आयरन, लेकिन आयरन के ऊपर क्या करते हैं, टीन इसकी प्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Tin cans used for storing food are made by electroplating tin onto iron. Tin is less reactive than iron. Thus, food does not come to contact with iron, क्योंकि इसके ऊपर किसकी प्लेट हो गई है, टिन की। एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द गेटिंग स्पॉइल्ड, और इससे जो फूड जो है खराब नहीं होता। आयरन इज यूज्ड इन ब्रिजेज, जो पुल वगैरह बनते हैं, ऑटोमोबाइल्स, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, उनके अंदर क्या बनती है, मजबूती। हाउ एवर आयरन टेंड्स टू कोरेड एंड ट्रस्ट, उसके ऊपर क्या लगता है, जंग वगैरह लगता है, खराब हो जाते हैं। सो ए कोटिंग ऑफ जिंक, आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग होती है, जिंक की, डिपॉजिट ऑन दी आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन, ताकि उसके ऊपर जंग वगैरह ना लगे, एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, और वो उसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग लाइफ रहे। तो ये आपका चैप्टर जो है 14 कंप्लीट हो गया है। तो आपने चैप्टर 14 को रीड करना है। इनकी जितनी भी एक्टिविटी हैं वो हम जब आपकी रेगुलर क्लास लगेगी तब करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।